Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। ओके, so let's start. The question is, to what extent do primary agricultural credit societies contribute to the development and empowerment of farmers in rural areas? The second part is, suggest measures to improve them. You have to answer in 150 words. This is a 10-marker question and we have solved, or you may say we have answered a lot of 10-marker question. We have seen the maximum time that we can dedicate to such questions is 6 minutes, or you may say max 7 minutes, because if you are going to invest beyond 7 minutes in a 10-marker question, you are going to lose time in some other question, maybe a 10-marker or a 15-marker question. Introducing EduChemy's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now, what we are trying to do here is to give you may say an example or the experience how the things work in the real exam. आपको पता है रियल एग्जामिनेशन जो है वो आपके टेस्ट सीरीज वेदर यू आर राइटिंग आंसर्स एट होम उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो अगर आज से ही आप इफ फ्रॉम टुडे इफ यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन फॉर द रियल एग्जामिनेशन, अगर आप रियल एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हर काम करते हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो एंड जब आपका एग्जाम आता है तो आपका ब्रेन इतना ट्रेन हो जाता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। नाउ व्हाई आई कीप ऑन रिपीटिंग दैट यू हैव टू आंसर दिस विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ 6 or 7 मिनट्स, बिकॉज इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं अगर मैं आपको 20 मिनट्स दे दूं, लेकिन आपके पास 20 मिनट्स नहीं है, आपके पास सिर्फ 6 मिनट्स हैं और उस 6 मिनट्स में अगर आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है तो आपको अपने ब्रेन को भी उसी टाइम पीरियड के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में, नाउ दिस इज क्वेश्चन रिगार्डिंग टू PACS. Now if you'll see the syllabus of General Studies 3, you will find a topic Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment, inclusive growth and issues arising from it. Now PACS is somewhere related to financial inclusion. ठीक है, रूरल सोसाइटीज का फाइनेंशियल इंक्लूजन पे PACS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कहीं से जो है आपका जो इंक्लूसिविटी पे बात करें, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इस टॉपिक के विद इन आता है। और GS3 में while preparing for economics for prelims you have already read about banking, और बैंकिंग में आपने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ रखा है, तो you have studied about PACS, तो आपको PACS के बारे में पता है। लेकिन still we will keep this question in a L2 level question because you have to know a little bit more about PACS so that you can frame you may say 10 points because this is a 10-marker question. And at the same time you have to suggest such measures to improve them. If you have read the current affairs in the recent times, government has been very vocal on PACS also. They are coming with lot of reforms in the PACS. तो ये PACS न्यूज में है, तो इसी कारण आप उम्मीद कर सकते हैं कि UPSC आपसे क्वेश्चन पूछे। तो हमने देख लिया क्वेश्चन क्या है, हमने देख लिया किस सिलेबस किस पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट पार्ट, द क्वेश्चन पार्ट, जो मॉडल आंसर। और यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको सिर्फ आउटलाइन बताएंगे। इस आंसर को जरूरी नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन कॉपी कर ले, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर इस क्वेश्चन में यू हैव टू फेच द मैक्सिमम मार्क्स, आपको कितना क्या क्या आप बोल सकते हैं कितने हद तक इसको आंसर करना पड़ेगा, कितने डिटेल में इसको आंसर करना पड़ेगा, ये आपको पता चल जाएगा। बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्किल्स, जो कि ओवर द टाइम इंप्रूव होता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात इंप्रूव हो जाता है,
ओवर द टाइम इंप्रूव होता है, और डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करते हैं ऑन अ डेली बेसिस रिलीजियसली, इट इज गोइंग टू इंप्रूव. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वी कीप इट क्रिस्प. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए और टू द पॉइंट, और फर्स्ट लाइन पढ़ते हुए ही एग्जामिनर को लगे यू हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज दे डोंट हैव टू मच टाइम टू एनालाइज योर आंसर्स. ये मैं आपको फिर से बोल देता हूं कि दिस इज यूपीएससी के चेकिंग को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिखेंगे तब जाके आपको जो है नंबर मिलता है. अच्छा, नो इफ यू आर राइटिंग अ वेरी टू द पॉइंट आंसर, अगर आप सारे रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं और बहुत लिमिटेड प्रिसाइज यूज ऑफ वर्ड्स में कर रहे हैं, तो आप अच्छा मार्क्स फेच करेंगे एंड ये आप ओवर द टाइम सीखेंगे. नाउ पीएससीएस की बात हो रही है तो आप राइट ऑन दी मनी आप पीएससीएस को बता दें कि पीएससीएस आर विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज दैट सर्व एज द लास्ट लिंक इन अ 3-tier कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर हेडेड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एससीबी एट द स्टेट लेवल. मैंने आपको सिंपल में सबसे सटीक इसका आप बोल सकते हैं डेफिनेशन पीएससीएस का बता दिया है. आप चाहें, अगर आपको पता है, इफ यू हैव स्टडीड वेल फॉर प्रीलिम्स, यू हैव स्टडीड इन डेप्थ फॉर प्रीलिम्स लाइक कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगर आप इस डायग्राम को यहां पर बना देते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो यू विल गेट 1 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. अगर आप ये बना देते हैं तो सबको पता चल जाता है कि व्हाट पीएससीएस किस लेवल पे आता है, पीएससीएस का कितना इंपॉर्टेंस है. और ये बनाने में तभी आप बना पाएंगे जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है सारे चीजों को. अगर आप इसको बना देते हैं तो डेफिनेटली आपका इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट होगा और पूरी तरह से कंप्लीट होगा. अब आप एक पॉइंट हिंट ऐड कर सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड भी. अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन December 27, 2022 हैज पुट द नंबर्स ऑफ पीएससीएस एट 1.02 lakhs. मतलब हमारे कंट्री में जो आप बोल सकते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज का रफ नंबर है, दैट इज अबाउट 1 lakh. तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे रूरल इकोनॉमी के लिए. हमने यहां सारे चीजों को कोड कर दिया. नाउ मूविंग ऑन टू दी requirements of the question, the main body part. यहां पर क्या है, to what extent do primary agriculture credit societies contribute to the development and empowerment of farmers in the rural areas. तो सबसे पहले हम लोग इसका इंपॉर्टेंस बता देते हैं और कैसे हेल्प करते हैं फार्मर्स को इन रूरल एरियाज. तो कुछ आपको जेनरिक पॉइंट्स लगेंगे, कुछ आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स लगेंगे, लेकिन आपको इसमें इन एंड अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स लिखना है. नाउ वी हैव रिटन अ फ्यू पॉइंट्स. हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट यू कैन ऑल्सो एड सर्टेन पॉइंट्स जो आपको लगता है कि यहां पर मोर एप्रोप्रिएट होगा. मैंने आपको ऑलरेडी बोला दिस इज जस्ट अ मॉडल आंसर, दिस इज जस्ट एन आउटलाइन. इसके अलावा आप जो भी ऐड करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है और वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इंप्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट. ऑब्वियसली पीएससीएस का सबसे जो रूरल आप बोल सकते हैं जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इन क्रेडिट स्ट्रक्चर, इन द कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, इंप्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट. बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड टाइमली क्रेडिट दे इनेबल फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स, हाई क्वालिटी इनपुट्स, चाहे आप सीड्स के हो, फर्टिलाइजर्स को लेके हो, इक्विपमेंट्स को लेके हो, चाहे जिसको बोलते हैं नेसेसरी मशीनरी हो. आप एग्जांपल यहां पर लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा. देखिए दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, तो यहां पे कोशिश करिए कि जो आपके पॉइंट्स बन रहे हैं जैसे इंप्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट, यू डोंट राइट मोर देन 10 to 15 वर्ड्स इन दिस एंड देन सफाइस विद एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लिख दीजिए, बिकॉज अगर 15 मार्कर क्वेश्चन होता तो हम लोग बोलते कि आप इसको पॉइंट को थोड़ा और डिफाइन करिए, बट बिकॉज दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव अ वर्ड लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स, प्लीज यूज योर वर्ड्स वेरी इंटेलिजेंटली एंड वेरी केयरफुली. तो यहां पर आपने कोट कर दिया कि महाराष्ट्र एमएससी बैंक हेल्प फार्मर्स अडॉप्ट ड्रिप इरिगेशन एंड बूस्टिंग यील्ड. दिस इज एन एग्जांपल हाउ कैसे आपका क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है वो महाराष्ट्र में पीएससीएस के द्वारा देखा गया है. ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन्स. अगर पीएससीएस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह जो है लास्ट माइल तक अगर फार्मर्स के पास प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वहां पर बाकी बैंक्स का उतना पेनिट्रेशन नहीं रहता है, तो इससे क्या होता है कि कुछ कल्चर्स होते हैं जो फाइनेंशियल कल्चर्स जैसे सेविंग कल्चर अमंग रूरल कम्युनिटीज, कुछ कैपिटल सेव करना फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह के प्रैक्टिसेस डेवलप होते हैं. और इसमें आप अगेन एग्जांपल कोट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक्स का, और जिसके अंदर वेरियस पीएससीएस ऑपरेट करते हैं. इसके बाद इंपावरमेंट थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी. नाउ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कैसे उसको यूज करना है, इससे पीएससीएस भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी या लास्ट माइल जो आप बोल सकते हैं एक तरह से हैंड एंड लेग्स प्रोवाइड करता है टू बिग बैंक्स. ठीक है, कि ये जो है बता सके, फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचा सके टू दी ग्रास रूट लेवल, एकदम बिल्कुल वहां पर कि फार्मर्स को पता चले कि कैसे हम लोग अपने बजटिंग कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अनदर यू मे से फंक्शन ऑफ पीएससीएस और हाउ दे कंट्रीब्यूट टू दी इंपावरमेंट ऑफ फार्मर्स. इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड मार्केट एक्सेस. अब यहां पर आपको पता है, देखिए यहां पर क्या है, जब आपको पीएससीएस रहता है तो वहां पर फार्मर्स कैन एक्सेस इनपुट्स एट बेटर रेट्स एंड सिक्योर फेयर प्रोसेस फॉर देयर प्रोड्यूस एंड मिनिमाइजिंग द एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ मिडलमैन. देखिए होता क्या है, आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब आपका रेडी हो जाता है और मार्केट में डिमांड नहीं होता है उस केस में, तो उस केस में क्या होता है कि दे हैव
सॉर्ट टू डिस्ट्रेस सेलिंग। डिस्ट्रेस सेलिंग क्या होता है कि जिस भी प्राइस पर फार्मर को मतलब जो मार्केट में चल रहा है उस पर बेचना पड़ता है। लेकिन अगर आप पीएससीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अगर अच्छे से काम करते हैं तो वहां पर आपको पता है वेयरहाउस में उनको मतलब वेयरहाउस का कुछ जैसे वेयरहाउस रिसीप्ट उनको दे सकते हैं जिसको यूज करके वो फर्दर क्रेडिट ले सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा आप बोल सकते हैं जो एडेड एडवांटेजेस है जो पीएससीएस का देखा जा सकता है और ये बहुत मदद कर सकता है फार्मर कम्युनिटी को। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का भी सेंटर्स के जैसा काम कर सकते हैं, जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, डिफरेंट फंक्शंस पीएससीएस और परफॉर्म कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल जितना भी बेनिफिट्स मिलता है उसके अलावा भी वो बहुत सारा चीज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप जैसे देख सकते हैं पीएससीएस जो इन कर्नाटका में है उन्होंने काफी मदद किया है ऐसा डेवलप इनिशिएटिव्स करने में टू इनहांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कि इंक्रीज किया है क्रॉप यील्ड्स एंड हायर इनकम लेवल्स। तो आप एग्जांपल कोट कर दीजिए और ये आपने बता दिया कि हाउ पीएससीएस इज गोइंग टू हेल्प फार्मर्स इन द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। नाउ अब यहां पर द सेकंड पार्ट क्या है, देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव देम। अब आपको मेजर्स बताना है तो आप एक छोटा सा जल्दी से ये भी बता सकते हैं कि क्या इश्यूज रिलेटेड है। अगर आप जल्दी से बना देते हैं तो दिस विल गेट यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, तो कैसे है, आप ऐसे ही डायग्राम बना सकते हैं जैसा मैंने आपको डायग्राम दिखाया। जरूरी नहीं है कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें, आप यहां पर लिख दीजिए इश्यूज रिलेटेड टू पीएससीएस। सबसे पहला क्या है, इनएडिक्वेट कवरेज। ऑब्वियसली पीएससीएस की इतनी बात हो रही है डिस्पाइट की 1 लाख इनका नंबर है हमारे कंट्री में, लेकिन स्टिल रूरल पॉपुलेशन जो है वो ओनली 50% कवर है। रूरल जो भी किसी भी एक एरिया का जितना भी रूरल हाउस होल्ड है उसका सिर्फ 50% कवर्ड है अंडर पीएससीएस सर्विसेज। इसके बाद आप बोल सकते हैं इनएडिक्वेट रिसोर्सेज है, इनके पास एनफ क्रेडिट नहीं है, एनफ पैसा नहीं है, इतना एनफ कैपिटल नहीं है ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म क्रेडिट दे पाएं और रूरल इकोनॉमी के नीड को जो है एड्रेस कर पाएं। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि इनके फंडिंग्स को या फिर इनके कैपिटल फ्लो को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए ताकि इनका लेंडिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि इनका जो रीसेंट टाइम्स में देखा गया है कि एनपीएस भी राइज कर रहा है, यहां पर एनपीए का भी जो है काफी इशू दिखने को मिल रहा है। तो आप इसको ही बोल सकते हैं कि इसका भी प्रॉपर रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि अगर इनका हेल्थ खराब हो जाता है, अगर इनमें बहुत ज्यादा एनपीएस का लोड हो जाता है तो फिर ये फर्दर लेंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो एनपीए के प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है जल्दी से जल्दी। एंड द फर्स्ट लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रॉपर रेगुलेशन रिक्वायर्ड है। इसको भी चाहिए आपको कि ऑल्दो दिस इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, लेकिन आपको जो है यहां पर कोशिश करना चाहिए कि इसका रेगुलेशन अंडर आरबीआई हो। आप इसको कुछ और प्रॉपरली रेगुलेट करिए, तभी जाके जो है इसका प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रहेगा और जो इसका सोल पर्पस है टू इनहैंस द रूरल इकोनॉमी वो जो है अच्छे से ये कर पाए। तो ये दिस आर द इश्यूज। तो आप यहां पर इसको कर सकते हैं कैसे वेज टू इंप्रूव। अगेन आई हैव रिटन इन बुलेट्स पॉइंट, आप यहां पर अगेन एक डायग्राम बना सकते हैं। अभी एक रिसेंटली गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है अप्रोक्सीमेटली 68,000 पीएससीज फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, मतलब उनके यहां कंप्यूटराइजेशन करना है और इनको जो है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, टेक्निकली साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, ये सारे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगर इनको प्रोवाइड कर पाए जैसे वेयर हाउसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग, तो यहां पर क्या होता है कि फार्मर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके वेयरहाउस रिसीट्स को ले सकते हैं और वेयरहाउस रिसीट्स को वो आपको पता है एज अ कोलैटरल देके आप वो कहीं से भी स्मॉल क्रेडिट ले सकते हैं। वेयरहाउस रिसिप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और फ्यूचर में ये डेफिनेटली इंडिया में डेवलप होगा, क्योंकि वेयरहाउसिंग अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। अगर रूरल वेयरहाउसिंग इंप्रूव हो जाता है, जहां पर कोल्ड स्टोरेजेस बना सकते हैं, जहां पर हम लोग अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर कर सकते हैं और उसके बदले हमें वेयरहाउस रिसिप्ट्स मिलता है और उससे हम लोग फर्दर क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम बनता है तो हमें बहुत ज्यादा फाइनल होने वाला है। इसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो मतलब आप बोल सकते हैं डिसबर्समेंट होता है एमएसपी थ्रू हमारा जो स्ट्रक्चर है जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसमें भी हम लोग पीएससीएस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पीएससीएस को आप गवर्नमेंट यूज कर सकती है एज आप बोल सकते हैं एज अ सोर्स पॉइंट, एज अ रिसोर्स पॉइंट यूज कर सकती है और वहां पर से आपको एमएसपी डिसबर्समेंट या इस तरह की चीजों को पीएससीएस के थ्रू किया जा सकता है। इसके बाद ये भी बोला गया है कि पीएससीएस को स्ट्रॉन्ग किया जाए और यहां पर जैसे स्कीम्स जो गवर्नमेंट की चलती है जैसे डीबीटी हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हुआ, आईएसएस हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हुआ, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये सब भी थ्रू पीएससीएस ही अगर करे गवर्नमेंट तो पीएससीएस ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और यही हमारा मकसद है कि एग्रीकल्चर और ग्रास रूट लेवल पे जो है वो पीएससीएस बहुत अच्छे से फंक्शन करे। तो यू हैव रिटन अराउंड 4 पॉइंट्स, ये मोर देन एनफ है। इसको यू कैन कन्वर्ट into diagram also. I have already told you many times कि आप डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम बनाइए, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करता है, स्पेस सेव करता है और थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी लगता है। पॉइंट्स देख के आपको हो सकता है कि एग्जामिनर को उतना समझ में नहीं आए, मजा नहीं आए, लेकिन अगर आप इसी को एक फ्लो डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो उनको समझ में भी आएगा, अगर आपने डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है तो। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन। आप लिख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन बिकॉज दिस इज अ 150 वर्ड्स क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 वर्ड्स or 15 words max. You can write a conclusion, a very precise conclusion. PSCS plays a vital role in rural farmer
development and empowerment. Strengthening and expanding the reach of PACS should be the priority for the government to ensure sustainable agriculture growth and rural prosperity. कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना सिंपल कंक्लूजन है, आपको इसी तरह से लिखने सीखना है. अगर आपने ये लिख दिया तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने कंक्लूड भी कर दिया है, आपने सारे पार्ट्स को एड्रेस कर दिया है एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. अगर आप इस आंसर को रेप्लिकेट कर देते हैं तो यू विल गेट अराउंड समवेयर अराउंड 5 to 6 मार्क्स और 5.5 मार्क्स, कुछ भी आपको मिल सकता है. एंड दिस इज गोइंग टू fetch you an overall marks of 95 plus. I am giving you this feedback from personal experience because we have already given this exams multiple times. तो आपको पता है कि ये real time experiences आपको तभी पता चलेगा जब आप एग्जाम देंगे, और एग्जाम देने से पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना, और इस तरह से प्रिपेयर करिए कि बिल्कुल एग्जाम के दिन आप सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि वहां पर प्रेशर सिचुएशन रहता है, वहां पर बहुत सारे कंडीशंस आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब आप एग्जाम देते हैं तो उस समय ठंडा रहता है, कोल्ड सीजन्स चलते हैं, तो उस समय आपका हाथ भी उतना अच्छे से काम नहीं करता है, ब्लड फ्लो उतना नहीं रहता है, तो आपको बहुत सारे हिंड्रेंसेज आएंगे. तो आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखना है. दिस इज अ माइंड गेम, दिस इज अ माइंड ट्रेनिंग गेम. ठीक है, तो अगर आप इस तरह से करके रखते हैं तो वहां पर आप डेफिनेटली बाकियों से अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको स्टैंड आउट करना है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू.